اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انجینئر محمد عدنان، میرے ساتھ رانی موجود ہیں، ان کے ساتھ سیدہ رامین ریاض موجود ہیں۔ ہم لوگ آج فیصل آباد سے اسلام آباد F11 مرکز کے اندر آئے ہیں۔ ٹرانسجینڈرز کی ایک کمیونٹی ہے، ان سے ملنے، اور پاکستان کا فرسٹ نیوٹریشنل کیمپ ہے یہاں پہ، جو کہ سیدہ رامین ریاض نے ارینج کیا ہے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے۔ تو ہمارے ساتھ اور بھی بہت سارے طلباء موجود ہیں، اور ان کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو دیکھنا ہے کہ ان کی لائف کس طرح کی ہے۔ ہم جو میل ہیں یا فیمیلز ہیں، اور یہ ایک تھرڈ جینڈر ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، ہم ان لوگوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، معاشرے کے اندر ان کی رسپیکٹ کیا ہے، یہ ہم لوگوں کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں، یہ تمام تر سوالات ہم میم رانی سے پوچھیں گے آج، اور یہ ہمیں کلیئر کٹ چیزیں بتائیں گے۔ اور سیکنڈلی میں ایڈ کرتا جاؤں کہ انہوں نے بتایا کہ بنگلہ دیش کے اندر 1951 کے اندر سب سے پہلے وہاں پہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی نے مدرسہ جو ہے وہ بلڈ اپ کیا تھا، اور سیکنڈ جو مدرسہ بلڈ اپ کیا ہے پاکستان کے اندر، وہ میم رانی نے کیا ہے، اور اسلام آباد کے اندر موجود ہے ان کی کمیونٹی۔ اور اسی مدرسے کے بارے میں اور ان کی پرسنل لائف کے بارے میں جاننے کے لیے ہم لوگ آج آئے ہیں، اور سیدہ رامین ریاض جو کہ ماہر خوراک ہیں، ڈائٹیشین ہیں، وہ اور ان کی ٹیم وہ آئے ہیں ان کو نیوٹریشن کے بارے میں بتانے، تو وہ سب ایکٹیویٹیز بھی آپ کو دکھائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم آتے ہیں میم رانی کی طرف۔ تو آپ سب سے پہلے بتائیں کہ آپ کا اصل نام کیا ہے؟ اگر آپ دیکھ لیں خواجہ سلام کو، خواجہ سلام میں زیادہ لوگوں کے ریئل نام عباس، شہباز اس طرح کے، جی، لیکن میرا اصل نام رانی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے نیمز جو ہیں وہ رکھنے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ ہائڈ کرنے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے آپ کو؟ خواجہ سلام اگر دیکھیں تو دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ جی، ایک ریلیٹڈ ہوتے ہیں مرد کے مشابہت، ٹھیک ہے، ایک ہوتے ہیں عورت کے مشابہت۔ جی، تو عورت کے مشابہت والا مرد کا نام تو کبھی بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے۔ آپ کی کیا ایج تھی جب آپ گھر سے باہر آئے، آپ کو پتہ چلا کہ آپ ڈفرینٹ ہیں عام لوگوں سے، میل ہیں، فیمیل ہیں، تو آپ کو کب پتہ چلا اس چیز کا؟ 5 سال کی عمر میں انسان کو ہوش آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، دنیا کو پڑھنے سمجھنے لگ جاتا ہے۔ جی، 5 سال سے آج تک 35 سال تک، مطلب 30 سال پہلے مجھے کبھی بھی نہیں لگا کہ میں مرد کے ساتھ کھیلوں گی اور میں جو ہے وہ کھیل سکوں گی، اور میں ان میں جیسے وہ ہے میں بھی ایسے ایکسیپٹ کر سکوں گی۔ اور 30 سال ہو گئے، مجھے کبھی گھر سے نہیں نکالا گیا، اور نہ ہی میں گھر سے نکلی اس طرح خواجہ صاحب کرتے ہیں۔ ہماری فیملی جو ہے وہ ذرا غریب تھی، کچھ ہوتے ہیں گھریلو تنازعات جس کی وجہ سے ہم بیمار ہو گئے تھے، تو پھر مجھے نکلنا پڑا۔ مجھے نکالا نہیں گیا، نہ ہی میں اس طرح نکلی تھی جس طرح خواجہ صاحب کرتے ہیں، میں گھر میں آتی جاتی تھی۔ میں گھر سے نکلی 13 سال کی، وہ بھی اس طرح نہیں کہ میں پراپر مکمل جیسے 5 سال نکلتے میں ایسے نہیں، 13 سال کی عمر میں نکلی، پھر 17 سال کی عمر میں گھر سے نکلی، پھر لاسٹ ٹائم 17 سال کی عمر میں بنار سے 18 سال پہلے گھر سے نکلی۔ وہ اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے مجھے نکال دیا، وہ اس وجہ سے کہ میرے بھائی جوان ہو گئے تھے، مجھے ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے۔ جب گھر میں آپ کی عزت نہیں ہوتی، آپ کی تنقید ہوتی ہے، تو آپ کیسے رہ سکتے ہیں؟ جب آپ فرسٹ ٹائم گھر سے نکلے تھے تو آپ کو کون سی پرابلمس سوسائٹی کے اندر فیس کرنا پڑی؟ جب میں گھر سے گئی تھی تو اس وقت 1 روپیہ 2 روپیہ اس چیز کا لوگ تھا، اس وقت لوگ سادے تھے، اس طرح نہیں تھے، حیات تھی ہم کو۔ بس یہی ہے کہ میں معصوم تھی، اور اس چیز کا مجھے فیس کرنا پڑا کہ کاش میں پڑھ لکھ لیتی، کاش میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح ویسے جاتے ہیں اسکولوں میں بھی جاتا ہوں۔ مجھے اس طرح کی فیسنگ نہیں کرنی پڑی جس طرح کی خواجہ سلام کو اب کرنی پڑی۔ 18 سال کی عمر میں آپ گھر سے نکلے، اور 17 سال کی عمر میں، اور ابھی آپ کی ماشاءاللہ آلموسٹ 35 ایئرس ہے، اور 18 سال آپ کو ہو گیا گھر سے نکلے ہوئے۔ 18 سال کا آپ کا سفر کتنا نیک کام میں گزرا ہے؟ لائک آپ نے اب ماشاءاللہ مدرسہ بنایا ہے، ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے،
اور آپ نے جیسا کہ بتایا کہ قطر کے بادشاہ تک آپ کو کال آئی ہے، شہزادہ سلمان کی کال آئی ہے، تو اس کی طرف بھی آتے ہیں. لیکن یہ بتائیں کہ آپ کی 18 سال کی لائف کا کتنا پارٹ ایک ڈانسنگ کمیونٹی کے اندر گزرا ہے، یا پھر جو دوسرا پارٹ بچتا ہے وہ ہمارے جو مدرسے کی طرف آتا ہے، یا مدرسے کا خیال ہی آپ کو کیسے آیا ایک ایسی کمیونٹی کے اندر رہتے ہوئے جہاں پہ لائک عیش و عشرت کا دور ہے اور ہر چیز آپ کو اویلیبل ہوتی ہے، تو اس سب سے کیسے آپ کو خیال آیا اور کیسے آپ نکلے؟ بہت سے لوگ اپنی زندگی میں بہت کچھ پاتے ہیں، بہت کچھ کھو جاتے ہیں. میں بھی ان میں سے بہت کچھ کھویا اور بہت کچھ پایا. الحمدللہ میں جو رونا پاک تھا میرا مجھے بھول چکا. الحمدللہ میرا یہ جو چل رہا ہے یہی میرا خیال ہے، یہی میری زندگی ہے. وہ میری زندگی نہیں تھی، تو جو زندگی میری تھی نہیں اس کے بارے میں کیا ہے. جس رولے خواب میں جانا نہیں چاہتی. آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پہ مدرسہ میں ڈب کیے ہوئے؟ مجھے تقریباً 7 ماہ ہو گئے. 7 آپ ماہ. دیکھیں 7 ماہ میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دے دی ہے مجھے. اتنے لوگ آتے ہیں خواجہ صاحب پڑھنے آتے ہیں، میں اتنے ایشوز پہ ان کے کام کرتی ہوں، اتنے مسائل ان کے حل کرتی ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کو آپ یاد کریں گے تو وہ بھی آپ کو یاد کرے گا. اس کی تو مخلوق کافی عبادت کرنے والی. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. پولیس جو ہے وہ خواجہ سراؤں کے پیچھے بہت بھاگتی ہے، ان کے گھروں میں ایسے ہی غیر پوچھے چھاپا مار دینا، آ جانا. ایک گھر کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جب فیملی ہے تو پولیس کا بھی حق نہیں بنتا کہ کسی گھر میں ایسے گھسے. آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا معاملہ درپیش ہوا؟ ہاں کافی آتا تھا، لیکن اب ہم نے قانون پاس کر دیا. جی. اب خواجہ سراؤں کے گھر میں بغیر دروازے دستک دیے ہوئے پولیس نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے. یہ ہم نے انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کر کے مسئلہ حل کیا. صحیح. اور ہم نے 2 اپلیکیشنیں بھی دی ہیں جن پہ عمل بھی کیا گیا دوسرے مشکلات کی طرف سے. اب ایسا نہیں ہے. کرنٹلی آپ کے مدرسے کے اندر کتنے اسٹوڈنٹس زیر تعلیم ہیں؟ یہاں پہ 21 تعلیم ہے. 21. صحیح. تو میم جب آپ ان کو لاتی ہیں اپنی طرف، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ تحائف دینے پڑتے ہیں، تو ان کے تحائف ان کو کچھ پیسے دینے پڑتے ہیں تاکہ وہ اس طرف چیز کی طرف آئیں. تو ایک ہم سسٹم دیکھتے ہیں گرو چیلا سسٹم، تو وہ کچھ گرو کی طرف سے آپ کو ہوتا ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ تو چیلا جو ہے، میں نے جہاں تک کام کیا مجھے اندازہ ہوا ہے کہ وہ گرو کی بات کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا. مطلب گرو اجازت دیں گے تو وہ کرے گا. بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے گرو جو ہے وہ حاجی صاحب ہے. اچھا. الحمدللہ وہ ایک بہت اچھے انسان ہیں. جب میں نے انیشیٹو لیا تو انہوں نے میرا ساتھ دیا. انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کریں گے کہ مل کر خواجہ صاحب کو اکٹھا کریں گے. ان کے ماشاء اللہ سے 400-500 اپنے اسٹوڈنٹ ہیں مختلف سٹیز میں. یہاں پہ جو 21 لوگ ہیں ان میں 17 ان کے اسٹوڈنٹس ہیں. وہ بھی تو گرو ہیں. نہیں میم ہم بات کریں نا، مطلب موسٹلی تو اچھے بھی ہوتے ہیں، کافی اچھے، ان کا بھی مجھے پتہ چلا، لیکن کچھ ہوتے ہیں کہ پھر وہ نہیں آپ کو اس طرف آنے دیتے، تو ایسے بھی ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں اس بات کو. بہت سارے بالکل ایسے ہی انٹرویو کافی ہوتے ہیں. گرو کلچر کے بارے میں کافی بڑے بڑے سوالات ہوتے ہیں. میں مدارس میں ہوں تو آپ سمجھیں کہ میں کسی گرو کلچر میں نہیں ہوں. یہاں پہ جو بچے آتے ہیں میں ان کی گرو نہیں ہوں. میں ان کو ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ لیٹ سپوز ایک خواجہ سرا ہے، اس کو آپ نے قائل کر کے اپنے مدرسے میں لے کے آنا، تو آپ اس کو ایک گرو کے در سے کیسے اپنے مدرسے کے اندر لے کے آتے ہیں، کیسے مطلب قائل آپ کا کرتے تو ہیں؟ یہ نہیں نا ہے کہ آپ نے اس کو اپنے اکارڈنگ چلانا، آپ تو دین کے راستے پہ لے کر آ رہے ہیں. دیکھیے وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ خواجہ سراؤں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے گرو ہی آپ کو منع کرتے ہیں. بعض ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جو نام گرو کا بدنام کرتے ہیں، وہ خود نہیں آنا چاہتے. جب ہم ان کے گروؤں سے ملتے ہیں تو وہ تو بہت اچھی طرح سے ہمیں گائڈ کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں میڈم. اور 1 گھنٹے کی کیا بات ہے، 24 گھنٹے میں صرف 1 گھنٹے کی میری کلاس ہوتی ہے 8 سے 9 بجے تک. تو وہ خود ہی نہیں آنا چاہتی. وہ ساری رات جب باہر گھومتے ہیں تو وہ دن میں اٹھیں گے کیسے؟ اس مدرسے کے اندر آپ کون سی تعلیمات اپنے اسٹوڈنٹس کو دے رہے ہیں؟ فی الحال تو ہم دینی ہی تعلیم دے رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو. اس کے ساتھ ساتھ ہم سلائی کڑھائی کا بھی کام ہم نے اسٹارٹ کیا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دوسرے دیگر کام شروع کیے. دینی تعلیمات کے اندر آپ قرآن پاک سکھا رہے ہیں؟ جی جی. قرآن مجید سب سے ضروری ہے کلمہ. جی. میں نے پاکستان میں کافی گھوم چکی ہوں اور کافی لوگوں کے گھروں میں کوئی بیان کی. میں نے کافی لوگوں سے کلمے سنے ہیں، لیکن کیا آیا ہم نے ڈگریاں حاصل کر لی، ہم نے قرآن مجید پڑھ لیا، کیا ہم نے یہ سوچا کہ قرآن مجید کے تلفظ بھی ساتھ نہیں کرنی چاہیے؟
हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आपका मानना होगा कि ये कलमा दुरुस्त है, जी लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। अगर आप कुरान में कलमे को देखें ज़ेर ज़बर के साथ तो वो लल्ला के बजाय वो लुल्ला है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम सबसे पहले निशानदही करवाते हैं ज़ेर ज़बर की। और मैं समझती हूँ कि ख्वाजा सरा से हटकर भी हमने काफ़ी, मैं खुद मदारसों में पढ़ी हुई हूँ, जिस तरह की हम तालीम देते हैं, मैंने आज तक खुद इस तरह के लोग बड़ी तालीम गए। हमारा ये था कि बैकग्राउंड अच्छा था फैमिली में। जी मेरी आप ही मुझे तलफ़ुज़ ठीक करवाती थी। हमारे कारी साहब थे मतलूब रहमान साहब, वो बहुत अच्छे थे, वो बहुत अच्छे अंदाज से हमें पढ़ाते थे, बहुत अच्छे उनका लहजा था। लेकिन आजकल तो मैं देख रही हूँ कि काफ़ी लोगों के तलफ़ुज़ की गलती है, और सबसे बड़ी गलती लोगों की, अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हम एक चीज़ को समझ तो सकते हैं अपने जहन से कि ये क्या कह रहे हैं, ज़ेर ज़बर क्या कह रहे हैं। हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे ही है, आपके माने में ये भी ठीक होगा, लेकिन वाव तो कहीं भी नहीं है उसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मुझे कैमरा देखे, मुझे सारी दुनिया देखे, जी अगर कोई भी किसी को भी ये कलमा गलत रखता है तो वो मुझे इससे डायरेक्ट रब्ता कर सकते बिल्कुल। ये कलमा है। मेरा जहन का तो यही मानना है, कुरान मजीद को किसी ने ठीक नहीं किया, समंदर से बड़ा है, लेकिन हम कलमे को तो ठीक कर सकते हैं। Exactly. बच्चा पैदा होता है उसे कलमा सिखाया जाता है, फिर एंड में जब मौत आती है तो कलमा पढ़ाते हैं। हर कोई कहता है कि अल्लाह जब हम इस दुनिया से जाएँ तो हमारे ज़ुबान पर कलमे कर देते हैं, वो कलमे के तलफ़ुज़ ही ठीक नहीं है। आपने अभी बताया था कि आप मैं जो हूँ सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को फोकस कर रहा हूँ। ख्वाजा सरा 14-15 साल की उम्र में निकलते हैं, यहाँ ज़्यादा लोग तो पढ़ते हैं 5 साल की उम्र में, आम लोग ख्वाजा सरा नहीं पढ़ पाते, तो कलमे में आप यकीन करें कि एक माना जाता है, तो मैं और क्या सिखाऊँ जिनको कलमे में इतना मुश्किल हो रहा है, बाकी काम क्या सिखाऊँ। आपने अभी बताया था कि आप यदि घरेलू बैकग्राउंड है वो एक दीनी बैकग्राउंड है, वो आपकी एक फैमिली जो है वो रिलीजियस है, तो कौन से आपके फैमिली मेम्बर्स हैं और वो क्या क्या इस टाइम कर रहे हैं? हमारे फैमिली मेम्बर में माशाल्लाह से सिस्टर है बड़ी सबसे, हम जब की नमाज़ पढ़ते बच्चों को जो है वो कुरान मजीद पढ़ाते हैं, मोहल्ले के बच्चे। जी जी यहाँ मेरी सिस्टर इस्लामाबाद में आलम है जी। वो आलमपुर से किया हुआ है, जो मैं रात को दुआ करवाती हूँ। वो 300 लेडीज़ होती हैं जो दुआ में शरीक हो जाती हैं, बयान करती है माशाल्लाह से, बच्चों को पढ़ाती है। अपने जो मुझसे अपने बच्चे माशाल्लाह 6 बेटे 1 बेटी है, वो 3 जो है वो हाफ़िज़ कुरान है और उनको दुआ हिफ्ज़ करवा रहे हैं। आपने पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है एक नेक सिलसिला शुरू करके। पूरा पाकिस्तान आपसे खुश है, पूरी दुनिया के लोग आपसे खुश हैं, लोग आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं मिलने। क्या आपके घर वाले भी आपके इस एक्ट की वजह से खुश हैं? क्या वो भी आपको मिलने आए हैं? ज़िंदगी में कुछ दुख ऐसे होते हैं जो कभी नहीं मिटते, और कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो कभी भी इंसान को फील नहीं होते। मेरे भाइयों के ना ही वो दुख मिटे ना ही वो एहसास खत्म, उनके लिए मैं वही हूँ जो कभी पहले थी, तो क्या इसमें क्या मेरा कसूर है? अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ को अल्लाह ही बेहतर समझता है। इंसान नहीं, तनकीद करना आसान है दूसरों पर, लेकिन अपने गिरबान में जब बंदा झाँक के देखते तो उसके लिए सब अच्छे हैं, मेरे लिए तो सारी दुनिया अच्छी है। मैम ये हम लोग जैसे आपके पास आज जितने बच्चे आए हैं, यूथ आपके सामने होती है, आप क्या पैगाम देना चाहेंगी कि हम लोग जो हैं हम क्या ट्रांसजेंडर सिटीजन्स के लिए कर सकते हैं, ऐसा कोई काम जिसमें हम अपना रोल अदा कर सकें? सबसे पहले तो आप लोग दूसरे लोग वहाँ आप लोगों की मैंने पूछा है कुछ लोगों से कि यूथ वो बड़ी कंपनी है, तो आप सब इकट्ठे होकर मिलकर जहाँ जहाँ ख्वाजा सरा मिलते हैं बहुत प्यार से उनको मिले, बहुत अच्छे अंदाज से उनको मिले। चाहे मैंने पहले बता चुकी हूँ, मैं तकरीर से पहले आपको बता चुकी हूँ कि ख्वाजा सरा में ज़्यादा 15 साल से वो निकलते हैं, तो उनके दिल व दिमाग में सिर्फ एक ही काम होता है, पैसा कमाना और दूसरों में जो है वो चेले करना, ये करना, वो करना। उनमें इज़्ज़त कहीं भी नहीं लोग उनको देते हैं। जब इज़्ज़त नहीं देते तो वो वही सिस्टम एक चला रहा होता है। एक काफिर है तो उसका बाप भी काफिर है, उसका दादा भी काफिर, वो काफिर ही चलते आएंगे। मैं मुसलमान हूँ, मैं ट्रांसजेंडर को फर्स्ट इनिशिएटिव मैंने लिया, तो मैं ही सबसे ये कहूँगी कि सबसे पहले आप उन लोगों को समझे, सब प्यार के साथ पेश है। अगर कोई कहती है कि मैं मैडम हूँ तो उनको मैडम कहे, अगर कोई कहे कि मैं ख्वाजा सर हूँ ख्वाजा सर कहे, अगर कोई कहे कि मैं बाजी हूँ तो उनको बाजी कहे। इससे आपको कुछ नहीं होगा।
लेकिन वो बहुत खुश होंगे, वो एक्साइटेड होंगे, वो फिर ही आप कोई भी काम बताएंगे तो आपकी बात भी मानेंगे और आपकी काम भी। मैम आपने बड़ी अच्छी बात की कि मैंने काफ़ी काम किया ट्रांसजेंडर के साथ, तो मैंने देखा कि आप ज़रा सा उनके साथ 2 लफ्ज़ बस प्यार के बोले ना तो वो आपके साथ बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं। मेरी एक बहुत अच्छी बहन बनी हुई है अभिषेक बशारत, शायद आपको पता हो, कोयटा में होती है। तो मैंने जब उनसे बातचीत करनी शुरू की तो मैंने कहती थी तुम आप मेरी दोस्त हो, तो कहती नहीं मुझे दोस्त नहीं, मुझे फिर अपनी बहन बनाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है तो मेरी बहन हो। फिर वो अब हर जगह लिखती है कि नहीं रामीन मेरी बहन है, मैं अगर लिख भी दूँ कि दोस्त है तो वो कहेगी नहीं नहीं मैं आपकी बहन हूँ। फिर कहती है ठीक है, तो फिर ज़रा से सिर्फ मैंने क्या कर लेना उसके लिए, सिर्फ प्यार से बात कर लेती हूँ, अच्छे से बात कर लेके मिल लिया बस, सलाम तो अच्छी तरह कर ली, तो वो उसी में बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उसी में खुश हो जाते हैं और आपके साथ इतना अच्छा बिहेवियर होता है कि शायद मुझे लगता है हम आपस में एक दूसरे के साथ वैसा बिहेवियर नहीं करते, हम एक दूसरे के साथ सलाम लेते होंगे, प्यार से बात करते होंगे तो इतने अट्रैक्ट नहीं होते जितना वो हमारी ज़रा से बात करने से, ज़रा सा अच्छा रवैया प्यार करने से खुश हो जाते हैं। इसी तरह वो बता रही थी कि वो बॉयज़ कॉलेज में जाती हैं तो उनका कहती है मुझे सिर्फ एक ये चीज़ होती है कि लोग मेरे से बस आराम से बात करें, कोई हमसे प्यार से बात ही नहीं करता, कोई चाहता ही नहीं कि हमारे साथ बैठ के चाय पिए। सब लोग मतलब एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे कि तुम इसके साथ अब चाय पियोगे, अब यही दिन आ गए थे। तो ये चीज़ ज़रूरी होती है कि हम बस मेरे ख्याल से कि अपना रवैया अगर ठीक कर लेते हैं अपने अपने हद तक, अपनी फैमिली के हद तक, तो हम काफ़ी ज़्यादा तब्दीली लेकर आ सकते हैं। अगर ऐसा हो तो ख्वाजा सरा घरों से भी नहीं निकाले जाएंगे, बिल्कुल। घरों से निकलेंगे ही नहीं। घरों से क्यों निकाले जाते हैं कि जब वो मोहल्ले में बाहर निकलते हैं तो सबसे बड़ी तनकीद वही होती है हाँ। जब भी वो आपस में लड़ते हैं तो सबसे पहले उसको उसी का ताना देते हैं, तो ऐसा ना किया जाए। बाकी मैं भी रमीन समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो अशद ज़रूरत है इनको वो सिर्फ प्यार की है, मोहब्बत की। ठीक है। इस्लाम क्या दर्ज देता है? इनका मोहब्बत भी का। काम यही है, ये भी कोशिश यही करते हैं कि प्यार सोसाइटी के अंदर बांटे, मोहब्बत बांटे। मैं समझता हूँ कि ये थर्ड पर्सनैलिटी होने के नाते इतना अच्छा हमसे बिहेव करते हैं, लाइक जहाँ पे भी मिल जाए, ठीक है, चाहे वो कोई अच्छा है बुरा है वो उसका एक्ट है, लेकिन इनका बोलने का तरीका वो हमसे बहुत बहुत अच्छा, दर्जे बहुत आगे अच्छा है, है। ठीक है। हम लोग यहाँ पे छोटी छोटी बात पे एक दूसरे को काट रहे होते हैं, लेकिन कभी आपने सुना हो कि नाजायज़ इन्होंने कभी किसी को कुछ गलत कहा हो? हाँ, जब कोई इनके साथ ज़्यादती करेगा तो फिर ये अपने राइट्स के लिए बोलेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का कि आप अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपके पास, ठीक है, आप बोलें, इनका राइट है। तो नेक्स्ट अगर आप में से किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते मैं हैं। सर की बात को कंटिन्यू करना चाहूँगी, जिस तरह उन्होंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन हैं या हकूक़ हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों के भी कुछ हकूक़ हैं, तो कुछ तो हैं जो पास आउट हो चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जो आप लोग चाहते हैं कि मतलब ये हमारे हकूक़ हों जो कि बिल्कुल आप डिज़र्व करते हैं। तो ऐसे कोई हकूक़ हैं जिनके लिए आप भी काम कर रही हों और आप चाह रही हों कि ये हमारे लिए बने और ये एज ए लॉ पास आउट हो? सबसे बड़ा हक है अल्लाह ताला इंसान के 100 ऐब छुपाते हैं, इंसान एक ऐब नहीं छुपा सकता, वही ऐब आपके सामने लाते हैं जिनसे आप कतराते हैं। मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले हमें ये काम करना चाहिए कि इन लोगों को ये ऐब जो है इनके वो हम छुपाएं, कहीं भी मेरे वो जिस तरह भी जिस हाल में भी क्यों ना विग लगाई तो क्या होगा कि इंसान नहीं, वो अपने आप को ट्रांसजेंडर कह रहे हैं, ट्रांसजेंडर हमने मिलकर ID कार्ड में जेंडर एक्स, आप ख्वाजा सराओं का जेंडर देखें वो एक्स है ID कार्ड में, पहले मर्द ख्वाजा सरा औरत ख्वाजा सरा था, वो हमने ख़त्म कर दिया इन लोगों को रिस्पेक्ट दिलाने के लिए, खुद को रिस्पेक्ट दिलाने के लिए। मैम अगर हमने यही देखी, मैंने जब अक़वाम मुत्तहिदा के साथ काम किया तो मैंने इस पर भी था कि ख्वाजा सरा के शनाख्ती कार्ड बनवाए जाएँ, लेकिन जब मैंने काम किया तो मुझे एक बड़ा मसला सामने आया कि वो लोग अपना जो आइडेंटिटी है वो नहीं लिखवाना चाह रहे थे, वो नहीं लिखवाना चाहते, वो या मेल लिखवाते हैं या फीमेल लिखवाते हैं। जो उन्होंने आपसे भी मैं पूछना चाहूँगी कि इसकी रीज़न क्या है? जो कुछ उन्होंने मुझे बताई वो ये थी कि हम फिर जब बाहर जाते हैं तो हमें कोई जॉब नहीं मिलती, अगर हमारे पास मेल की आइडेंटिटी होती है तो चलो फिर भी कहीं ना कहीं मिल जाती है, अगर हम कुछ लिखवा लेते हैं तो फिर हमारी फैमिली बिल्कुल ही हमें डिसऑन कर देती है कि अब तो तुम्हारे पास ये तुम्हारे शनाख्ती कार्ड पर ये लिखा हो। देखिए तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माँ बाप की एक ही औलाद होती है, अगर औरत को हक है मर्द को हक है तो ख्वाजा सरा सिर्फ अपने हक के लिए वो फिर जेंट्स कार्ड लिखवाते हैं, क्योंकि आपके वालिदैन आपको एक्सेप्ट जेंट्स से करते हैं। आप ख्वाजा सरा को 2 तरीक़ों से एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेडीज़ एंड जेंट्स। लेडीज़ को जेंट्स नहीं कह सकते, जेंट्स को लेडीज़ नहीं, ख्वाजा सरा को आप दोनों कह सकते हैं, सिर्फ इसी वजह से ताकि ख़ानदानी विरासत से वो कट ना जाए। लेकिन अब तो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में स्पेसिफिक सीट्स भी हैं,
मतलब अगर मतलब हम जेंडर स्पेसिफिक ना करें तो स्पेसिफिक सीट्स हैं अब मतलब अब तो ट्रांसजेंडर्स बकायदा की जॉब्स भी अनाउंस बाकायदा जॉब्स अनाउंस होती हैं और उसमें स्पेसिफिक पोर्शन होता है या कोटा होता है बाकायदा जो हमने अपने ट्रांसजेंडर्स के लिए होता रेस्टोरेंट है। में रखा हुआ है कि 25% ट्रांसजेंडर के लिए और- ऐसा मैंने भी कुछ पूछना है। जी। मैंने आपकी सारी बात सुनी, मतलब जो जब से मतलब आपको सुन रही हूँ तो मतलब मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि अगर जी 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 ज़रूर। तो अगर आपसे मतलब कुछ इस तरह की बात पूछते हैं जो कि मतलब आपके साथ जहाँ से स्टार्ट हुआ या जहाँ से आपने सोचा कि नहीं मेरे साथ मतलब जो होना था हो गया, नहीं अब मैंने अपनी लाइफ को चेंज करना है, तो उससे पहले आपके साथ जो भी बुरा हो अगर आपसे उसके बारे में पूछा भी जाता है तो आप मतलब वो डिस्कस नहीं करना चाहते या आपके माइंड मतलब आपकी बातों से लग रहा है कि आपकी लाइफ में वो एग्जिस्ट ही नहीं करती वो चीज़ें अब जो हो चुका। मतलब हमारे साथ अगर थोड़ा सा भी कुछ बुरा हो जाता है ऐसे नॉर्मल के साथ तो हमें भूलता ही नहीं है कभी। तो मतलब आपके दिल में वो क्या चीज़ ऐसी मोटिवेशन आई कि आपने कहा कि नहीं अब मैंने इसके बारे में ना सोचना है ना डिस्कस करना है। इतनी महरूमी का शिकार होता है पापा से, दुखों की दुनिया में पलते हैं और दुख की दुनिया में ही वो मरता है। तो इतने दुख हम छुपाते हैं कि ये दुख भी तो छुपा सकते हैं। वैसे तो आंखों से साफ पता चल जाता है हर इंसान के कि वो अंदर से कितना दुखी है, कितना टूटा हुआ है। जब मैंने अल्लाह का रास्ता अख्तियार किया तो मुझे लगता है कि अगर मुश्किलात मुझ में है तो इसलिए कि मैंने कभी अल्लाह की तरफ मुतवज्जो नहीं हुई। मैंने कभी कलमा ही नहीं पढ़ा, कुरान मजीद लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ने के बावजूद भी मैंने कभी नहीं खोला, शायद इसी वजह से। तो फिर जब वो मेरी गलतियाँ थी वो कैसे शेयर करूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो हर तरफ कुछ नहीं कुछ दुख है तो सिर्फ इस चीज़ का कि ऐसा ना हो कि मुझे अल्लाह माफ़ ना करो मैं ऐसे ही चल। दुख है तो इस चीज़ का कि मेरे ख्वाजा सलाम क्यों नहीं मेरी तरफ आ रहे। दुख है तो इस चीज़ का कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया ख्वाजा सलाम के लिए, वो क्यों नहीं मुझे एक्सेप्ट कर रहे। वो क्यों इस तरह समझते हैं कि जिस तरह दूसरे ख्वाजा सरा है वो प्लेटफॉर्म बनाते हैं ख्वाजा सलाम, मुझे वो क्यों समझते हैं इस तरह। ना मेरी बेटी है ना मेरा बेटा है, मेरा दुनिया में कोई नहीं है सिवाय इनके। माँ बाप वो एक अलग रोल है, मेन रोल इनका है, मैं इनके साथ रहती हूँ। माँ बाप के लिए मैं मेहमान हूँ। जैसे बेटी की शादी की जाती है वो काफ़ी बच्चे जब उनके हो जाते हैं तो वो फिर बच्चों में ही मशगूल हो जाती है। कभी कभार माँ बाप को दुख हो तो चल जाती है, वरना नहीं। मैं भी तो ऐसे ही, मैं तब जाती हूँ घर जब उनको ज़्यादा तकलीफ़ हो, फिर मैं घर जाती हूँ, वरना नहीं। मतलब आपने अपने आप को एक्सेप्ट करके जो आपके साथ बुरा हुआ भी आपने उसको अपनी लाइफ में एक रीज़न बना दिया कि वो ये रीज़न नहीं है कि मैं डिफरेंट हूँ, वो ये रीज़न नहीं है कि मैंने वो नहीं किया जो अल्लाह ताला चाहते थे। तो आपने उसको मोटिवेशन बना के उसके साथ चल के आपने अपने आप को जो है वो उस चीज़ से निकाला हुआ है। ये मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आप देखें ना, अल्लाह ताला किसी को जब हिदायत देने लगता है तो पता नहीं चलता ना। हम भी बहुत गुनाहगार लोग हैं, ठीक है, लेकिन अल्लाह करे कि हम भी इस रास्ते की तरफ राग़िब हो जाएं। उनको अल्लाह ताला ने तौफीक दी, हिदायत दी, उन्होंने उस चीज़ के ऊपर काम किया। माशाल्लाह अब 7 मंथ्स हो गए हैं, उनके पास स्टूडेंट्स हैं, उनका एक बाकायदा अदारा है। क्या ये अदारा रजिस्टर्ड है? जी नहीं, इदारा रजिस्टर्ड नहीं। तो आप रजिस्टर करवाने की कोशिश कर रहे हैं? अभी तो नहीं, अभी तो मैं लोगों को पहले इकट्ठा कर रही हूँ। प्रॉपर इसकी आप डॉक्यूमेंटेशन करवाएं, रेकमेंड मैं यही करूँगा ताकि आप इंटरनेशनली आप इसको लेके जा सकें। तो बाकी ये है कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत दिल करता है बहुत सारी बातें करें, बहुत सारा पूछें, तो फिर भी अगर कोई मज़ीद कोई क्वेश्चन राइज करना आपसे चाहे। ये पूछना चाहूँगी, आपने तबलीग का सोचा जब, तो आपने अपनी इस्लामिक एजुकेशन जो थी उस पर थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले आपने कहीं से सीखा? क्योंकि आपने जैसे कहा कि आपने कुरान पाक, जैसे हम लोग भी नॉर्मली सब में पढ़ा होता है लेकिन तवज्जो हम नहीं देते, आप नहीं दे रहे थे पहले, तो फिर आपने जब ये सारा कुछ सोचा तो फिर आपने कहीं से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की? मैंने लाल मस्जिद से भी कुरान मजीद पढ़ा, मैंने जामे मस्जिद बुखारी से भी कुरान मजीद पढ़ा, और मैंने घर में भी कुरान मजीद पढ़ा। मैं 3 साल पहले माफ़ी मांगी, वो ख्वाब जो मुझे आया स्टार्ट करने से पहले 3 साल पहले, हाँ ये स्टार्ट 7 मंथ हुआ, 3 साल पहले मुझे वो ख्वाब आया। उसके बाद मैं तिलावत ही करती रहती थी, उसके बाद मैं कुरान मजीद ही पढ़ती रहती थी, उसके बाद मैं नमाज़ें ही पढ़ती रहती थी। लेकिन आपने इस तरफ आप आए तो आपके दिल में कभी तो ख्याल आता होगा कि मतलब ये कितना मुश्किल है ये पार्ट देना, मेरे पास इतने पैसे नहीं आते, इतना कितना मुश्किल होगा। कभी भी दिल में ख्याल आया कि यार छोड़ो ये सब वापस चलते हैं इस कम्युनिटी की भी फील होती होगी। तो क्या मैं अपने आपकी- नबी की ज़िंदगी पढ़ती हूँ ना, उन्होंने कैसे वो खजूरें खाई जो टोंकी हुई कवों की थी, कैसे उन्होंने दिन गुजारे, कैसे
उम्मत के सरदार की बेटी ने किस तरह आंसू बहाए भूख के लिए, तो फिर मुझे बहुत सकून आ जाता है। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे पास कुछ ना हो, मुझे भी एहसास हो इस चीज़ का, मुझे भी पता चले कि मैं इंसान हूँ और मैंने सच्ची तौबा की है। सब कुछ मिलती है, हर नेमत मिल रही है, मैं किस चीज़ की तौबा है मेरी। मैं समझती हूँ कि जब आपको दुख आते हैं तब आपको पता चलता है कि असल हकीकत है क्या, भूख क्या होती है। ये उनसे पूछे जिनके पास खाना नहीं होता, ये उनसे पूछे जिनके कोई नहीं होता, तन तनहा दबे पाँव घरों में बैठे रहते और मांग भी नहीं रहते किसी से। मैं मुख्तलिफ विज़िट करती हूँ, ऐसे लोग मैंने देखे हैं, दिल खून के आंसू होता है, अल्लाह का कुछ शुक्रिया अदा करते हैं, लंबे लंबे सजदे करते हैं कि हर नेमत से तो मेरे रब ने मुझे नवाजा है, क्या कमी है मुझे। लेकिन काश कि मुझे ये ख्याल बहुत पहले आ जाता है। जवानी में एक ही नमाज पढ़ लेती हूँ। आपकी सोच बहुत अच्छी है, मतलब कि आप जिनसे सोच रहे हैं और अपने साथ लोगों को लेके चल रहे हैं ना, यही वजह है कि अल्लाह ने आपके लिए इतनी आसानियाँ पैदा कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह आगे मेरे रब का भी जितना भी इस शुक्रिया अदा करें वो कम है, ताकि इंसान की काफ़ी ख्वाहिशें होती हैं। जैसे आप बहुत से लोगों के लिए मोटिवेशन बन रही हैं, अब जैसे आपने कहा कि आपको सर्च आउट करते यहाँ तक पहुँची, तो आपने भी किसी को देखा, आपने उनसे इंस्पायर आपके भी कोई आइडियल होंगे? फर्स्ट मदरसा ही ख्वाजा सलाम, मैंने ख्वाजा सलाम में तो कोई भी ऐसा नहीं देखा। जैसे आपने भी बोला हाजी साहब का आपने जिक्र किया था, तो उनसे आप इंस्पायर हुई या वो हाँ, आपको मैं देखते हैं? काफ़ी उनसे मुतासिर होती थी, देखती थी उनको, लेकिन वो मैं उनके साथ नहीं रहती थी। एहसास आपको तब होता है जब आप किसी के साथ रहते हैं। वो पिंडी में थी, मैं उस वक्त सरगोदा में थी, मुझे उनके एहसास कैसे होते। एक बात मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे बात की जाती है कि ख्वाजा साहब के लिए स्कूल में सेंटर से आपकी आवाज़ बेटा बहुत स्लो है सर। आगे तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक तो ये है कि वो लोग कहते हैं कि ख्वाजा साहब के लिए अलग से स्कूल हो जिसके अंदर वो पढ़े हों तो कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में रहें, और दूसरी बात ये है कि हम उनको सोसाइटी में अपने साथ ढूंढें, उनके साथ ऐसे जाएँ कि अगर उनके लिए अलग इदारे नहीं हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ में हमारे साथ ही पढ़ रहे हैं, तो भी उन्हें ना लगे कि हमें अलग इदारों की ज़रूरत है। जब लड़कियाँ लड़के यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं तो वो क्यों नहीं? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या अभी ये स्टेज है कि उनके लिए पहले से अलग इदारे में वो पहले कॉन्फिडेंट हों, या हम उनके अंदर इतना गुडविल अभी से जाएँ कि वो कोई अलग चीज़ तो नहीं है, वो हमारे साथ नहीं जैसे दिल में जब एहसास पैदा होता है तो सवाल मुँह में आ ही जाता है। बहुत अच्छी बात की आपने, आप लोग कितने अच्छे हैं, हमने तो ख्वाजा साहब, अगर आप लोग हमें यहाँ बैठ इतनी दूर से आप आए हमारे लिए, हम में बैठे हमारे साथ आप गुफ्तगू कर रहे हैं, यही चीज़ होती है, ख्वाजा साहब को यही चीज़ चाहिए होती है। और आप जैसे नेक लोग हैं तो मैं समझती हूँ अलग इदारों की ज़रूरत ही नहीं है। अलग इदारों को तो बना के किसी को सेपरेट करने को नहीं बात। मतलब जब अलग इदारों का, अलग थानों का या इस चीज़ का हम एज ए सोसाइटी में अपने अंदर क्यों नहीं जाते? मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, बड़ा तालाब उसमें मछली है, उसमें से एक मछली अलग की और वो छोटे से तालाब में डालती है। इसका मतलब है कि वो मछली उनमें से जो है वो गुजारा नहीं कर सकती थी, या उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, वो अकेली तो अकेली वो घुसरती रहेगी। अगर इस चीज़ को हम इस सिस्टम को अलग कर दें तो ख्वाजा साहब घुसरता रहेगा, वो कभी भी अपना मयार नहीं पाएगा आप लोगों की तरह, और ना ही कभी भी आप लोगों की जैसा कुछ सोचेगा। जब आप लोगों में होगा तो वो गुण मिल जाएगा। इसमें एहसास की बात है, अगर हर एक एहसास करे तो मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ी नेकी ये है कि आप लोग गुण मिल जाए। मेरे ख्याल से तो ये मुतालबा ही गलत है कि उनके लिए अलग से चीज़ें होनी चाहिए। बिल्कुल मुतालबा ऐसे ये नहीं। होना चाहिए कि पूरी सोसाइटी में ऐसे देखिए यहाँ कौम की ऐसी बेटियाँ हैं जो छोटी छोटी बच्ची हैं, यहाँ पढ़ने आती हैं, 5-6 बच्चियाँ आती हैं, छोटी छोटी इतनी प्यारी प्यारी, यहाँ हमारे पड़ोस में रहती हैं, तो उन्होंने हमें एक्सेप्ट किया तो उन्होंने भेजे, तो इन ख्वाजा साहब को ज़्यादा खुशी होती है। अगर ये छेड़खानियाँ बैठे क्लास में करते हैं, जब बच्चों को देखते हैं वो पढ़ते हैं तो फिर ये भी दिल लगा के पढ़ते हैं, तो ये एहसास तो बहुत बड़ा है। अभी तक आपके मदरसे के लिए कोई इमदाद वगैरह किसी ने भेजी हो, या कोई आपको किसी किस्म की इस अपने सिस्टम को चलाने के लिए किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो फाइनेंशियली या फिर किसी भी फॉर्म के अंदर, तो वो आप एक अपने पैगाम की सूरत में दे सकते हैं, ताकि हम लोग जो हमें बाद में सुनेंगे वो भी आपको हेल्प आउट करना चाहें,
तो वो भी इस नेक काम का हिस्सा बन सके। झूठ से माल तो बिक जाते हैं मगर बरकत नहीं रहती। मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। रामीन जी ने फंड रेजिंग के लिए हमें इनवाइट किया था। आपको पता है कि क्या हुआ था? एहसास इतना कम हो चुका है, मोहब्बत इतनी ख़त्म हो चुकी है, अपना अपने का नहीं रहा, कैसे रहेंगे हमारे। तो सबसे मेरा यही पैगाम है कि प्लीज़ अगर आप कोई मेरी मदद करेंगे, मुझे हेल्प करेंगे, वो मुझे नहीं करेंगे, वो आप अपनी आखिरत बनाएंगे, अपनी आखिरत को संभालेंगे। मैं निकली अपनी आखिरत बनाने के लिए, आप भी निकले अपनी आखिरत बनाने के लिए। लाखों लोग फंडिंग करते हैं, यतीम बच्चों में करते हैं, यतीम बच्चियों में करते हैं, गरीबों में करते हैं, मस्कीनों में करते हैं। मैं समझती हूँ कि इन सबको मैच किया जाए तो एक ख्वाजा सराय है। अगर आप ख्वाजा सराय की हेल्प करेंगे तो हमारा ये होगा कि हम अपना एक मदरसा बना लेंगे, अपनी जगह ले लेंगे। उसमें ये होगा कि नीचे मदरसे ऊपर शेल्टर रूम होंगे, फिर दूर दूर से ख्वाजा सराय आएंगे, हमें किराए भी नहीं देने पड़ेंगे, हमें इतने भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। और उसमें ये होगा कि मेरे जाने के बाद भी लोग इसे याद करेंगे, मेरे लिए वो एक आखिरत का जरिया बनेगा। जो मदद करेंगे उस मुल्क के लिए भी आखिरत का जरिया बनेगा। हम बहुत सारे गुनाह करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला को छोटी सी भूल चाहिए नहीं कि आपको बख्श के। तो मैं समझती हूँ कि इसमें हिस्सा डाल के बोले कि वो छोटी सी भूल ही आप समझ के हिस्सा डाल। आपके मदरसे की जगह है और आपके स्काई सेंटर की जगह है, क्या ये आपकी अपनी ज़ाती है या फिर रेंटल बेसिस पे? अगर ये मेरी ज़ाती अपनी होती तो मैं फ़ंड के लिए कभी भी इतना वो नहीं होती, या प्रोग्राम में ना कहती फ़ंड के लिए। ये हमारे किराए पर है और 72,000 रुपये मंथली बहुत बड़ी रकम है कि आप किराया दे रहे हैं। उसके बाद फिर जो रेट ये लगा के देती हूँ, जो इनको जॉब पे लगा के दिया है सब कुछ, उस पर जितने भी अखराजात आते हैं वो मैं खुद करती हूँ। इसलिए करती हूँ कि दूसरों को पाँव में स्टैंड करना है मुझे, उनको पता चले कि नहीं हम जो बैकिंग करते हैं डांसिंग करते हैं उसके बाद भी हम कमा सकते हैं, उससे अलावा भी हम कमा सकते हैं, उससे हटकर हम मुआशरे में अपनी इज़्ज़त को बना सकते हैं, उसलिए करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी नेकी है। अगर कोई भी इनमें मदद करेगा तो उसके लिए भी ये एक ही है। ये शेल्टर, ये जितने भी हमारे शेल्टर है, मदरसा है, ये सब किराए पर है और ये सिर्फ मुझ तक महदूद है। अगर मुहलिया दौर से लेकर आज तक ये काम नहीं हुआ, अगर मुझ में हुआ है तो मैं समझती हूँ कि इसमें बड़ा एहसास ये है कि मैं बैकग्राउंड फैमिली मेरी अच्छी है। मुसल्लों पर बैठ कर मुझे मेरे पीछे दुआएं मांगी जाती है कि अल्लाह से लेके के रास्ते मिले, अल्लाह ताला लेकर देकर। तो हर एक ऐसा नहीं होता, तो ना ही हर एक की फैमिली ऐसी होती है। तो मैं चली जाऊँगी फिर ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, वही नाचना गाना वही सब शुरू हो। अगर आप लोग हेल्प करेंगे तो हमारी हेल्प करेंगे, हम अपना मदरसा बनाएंगे, वो मेरे साथ नहीं जाएगा, वो मेरे बात मेरे नाम पे बेचा नहीं जाएगा, वो अल्लाह के नाम पे तो फिर सबीलिल्लाह होगा, क़यामत तक चलता रहेगा। फिर मैशर भी उसके साथ है, शायद अल्लाह में माफ़ कर दे। आपने इतने सारे पेपर पकड़े हुए हैं, आपने कोई टेस्ट नहीं करना, कोई दिल में आए किसी की बात, कोई टेंशन नहीं है। हम एक है, हम आप में से, आप हम में से, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते। बच्चियाँ हैं ना, झिझकती हैं, नाराज़ ना हो जाए, इस तरह मैं नाराज़ होने वाली नहीं हूँ। हालांकि बाज़ दफ़ा हमने कोशिश की है कुछ ख्वाजा सराओं को मिलने की, उनका इंटरव्यू करने की, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने की, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें इनकार किया। हमने बाकायदा उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश की, लेकिन हमें एक्सेप्टेंस नहीं मिली उनकी तरफ से। इसकी क्या वजह समझती हैं आप? क्यों वो कैमरा को क्यों नहीं फेस करना चाहते? इसलिए कि लोग प्लेटफॉर्म बनाते हैं जी। मैं समझती हूँ कि उनको आना चाहिए। अगर कोई आपको प्लेटफॉर्म बनाता तो बनाता है, आपकी आवाज़ तो दुनिया तक पहुँच रही है, आपका एक अच्छा पैगाम तो दुनिया तक पहुँच रहा है। शायद उसी से आपको देखकर लोग मुतासिर होकर सजदे करने शुरू कर दें। आपका सजदा ना हो कबूल, उनका कबूल हो, उनके जैसे आपकी कोशिश होगी तो इंटरव्यू देने चाहिए। लेकिन मेन वजह यही है कि लोग प्लेटफॉर्म बनाते हैं। ख्वाजा साहब की इज़्ज़त ही कहा, मैं इस रास्ते में निकली हूँ, ख्वाजा साहब नहीं निकल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह निकल रहे हैं, लोग नमाज भी पढ़ते, सब कुछ करते हैं। लेकिन हज़रत शुएब की कौम एक शख्स ऐसा था जो सारी रात रोता था। शुएब से कौम ने पूछा कि आपकी कौम में हमें एक बंदा ऐसा बता दो जो बख्श हो। आप तो अल्लाह के पैगंबर, उसने कहा मुझे नहीं पता। तो जिब्राइल आ गए कि कह दो कि हमें जन्नती का तो नहीं पता, लेकिन
फलां बंदा जो सारी रात रोता है इबादत करते हुए दोनों हो जाएगा। मैंने कहा ये तो मेरे सारे मुखालिफ हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं आप कह देंगे अल्लाह का हुक्म है। मैंने कह दिया तो सारे मुखालिफ हो गए। मैंने कहा नहीं सुनो, बिल्कुल वो सारी रात रोता है गिड़गिड़ाता है अल्लाह के आगे, लेकिन दिन को वो वही काम करता है जिसकी वजह से उसकी तौबा कबूल नहीं होती। तो मैं चाहती हूँ कि अगर तौबा करें तो कम्प्लीटली करें। हम सुबह मैं सजदा करती हूँ, रात को मैं डांस कर रही हूँ, मेरी तौबा नहीं है, मेरा सजदा कबूल नहीं है। मैं अपने लिए कह रही हूँ, किसी के लिए नहीं कह रही। मुझे सबसे पहले खुद को एक मुतमिन करना होगा, अपनी सोच को इस चीज़ पे एग्री करना होगा कि सजदा करना है तो नाचना नहीं है, और भी ज़राए तो हैं कमाने के लिए। मैं फूड की रेडी लगाती हूँ, मुझे शर्म नहीं आती। मैं टेलरिंग करती हूँ, मुझे शर्म नहीं आती। मैंने स्टार के लिए अप्लाई किया, मुझे शर्म नहीं आई। ख्वाजा साहब को जॉब दिलवाई है, मुझे शर्म नहीं आती। फिर एक ही चीज़ पे शर्म आती है, इसका मतलब बिल्कुल गलत है। अगर मैं पढ़ी लिखी फैमिली में से थी, आर्मी की फैमिली से, तो आज तक काफ़ी लोगों ने इंटरव्यू किए, लेकिन कभी किसी ने मुझसे ये पूछा फिर आपने क्यों नहीं पढ़ा? इसलिए नहीं पढ़ा कि मैं समझदार थी। जब मैंने रात को वही गलत काम करना था, वही डांस करना था, वही बैगिंग करनी थी, वही लोग से झूठ बोल करना था, मेरे सही का कोई फ़ायदा ही नहीं। अब प्रॉपरली तो अब मेरा रब जानता है या मैं जानता हूँ। लोग सुनी सुनाई पर बातें पर यकीन करते हैं, कुछ नहीं भी करते, लेकिन हकीकत तो अल्लाह के पास होती है। मैं समझती हूँ कि तौबा करें तो बच्ची करें, वरना तौबा को माहौल ना बनाए, वरना फिर आपको वही हाल होगा जो हज़रत शुएब को उसको मैम मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है आपसे, मैं आपकी कह लें बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। माशरे में मैंने जिस तरह पहले ख्वाजा साहब को देखा तो मतलब कि मुझे बिल्कुल मतलब पसंद नहीं थे। मैं डरती थी, जैसे माशरे में हर बच्चे को माँ बाप डराते हैं कि हम ख्वाजा साहब को पकड़ा देंगे, मैं भी डरती थी। लेकिन जब से मैंने मेरी सिस्टर ने आपको देखा, ट्रांसजेंडर के लिए काम किया, मेरे दिल में बहुत ज़्यादा मोहब्बत पैदा हुई। फिर मैंने आपको देखा, मैं कह लें आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली कि अगर आप ख्वाजा सराओ की बना सकती हैं, तबलीग मदरसा बना सकती हैं, तो मेरा ताल्लुक़ एक मतलब कि सैयद घराने से है, तो मैं क्यों नहीं बना सकती। मैं इस पर बहुत ज़्यादा आजकल सोच रही हूँ कि मैंने भी मदरसा बनाना है और मैंने वहाँ पर लगाना है। सबसे पहले आपको बुलाना है, इफ्तिताह आपसे करवाना है कि मेरी मोटिवेशन मिस रानी खान है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। जज़ाकल्लाह, हमारी दुआ है आपके लिए। इसमें तालीम में माशाल्लाह मेरी दुआ है आपके लिए कि आप अपने मकसद में ज़रूर कामयाब हो। अब जब भी परेशानी हो आपको कि आप हिम्मत हार जाए कि नहीं बन सकता, तो फिर आप मुझे याद रखिए, मैं मिसाल हूँ आपकी। आपने मिसाल नन्ही परी आपने आपने कहा कि मेरे जाने के बाद फिर नाचना गाना स्टार्ट हो गया, तो आपको नहीं लगता कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से कोई भी एक ऐसा होगा जो आपका अक्स बनेगा? अगर नहीं लगता तो ऐसा क्यों है? इसलिए कि हमारे आस पड़ोस में मैंने पहले बताया आप लोगों को कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ख्वाजा सरा जो है ना, अगर एक एरिया की बात की जाए तो यहाँ पर ऐसा है कि मैंने मुकम्मल तौर पर एक माफ़ी मांगी अल्लाह ताला से, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाई, रोई, और हमेशा माफ़ी मांगती हूँ कि या अल्लाह मुझे इतनी ताकत ना देना कि मैं किसी मज़लूम के साथ ज़्यादती करूँ, लेकिन या अल्लाह मुझे इतना मज़लूम भी ना बनाना कि कोई ताकतवर मुझ पर ज़्यादती करे। तो मैं समझती हूँ कि ये अभी कमज़ोर है, कि पहली सीढ़ी है अभी ये। लेकिन आप स्ट्रगल तो कर सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकती हूँ, फिलहाल यूनिटी लेकिन- चाहिए इनको। लेकिन मेरे माइंड ने जो कहा है, क्योंकि मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं, मेरे माइंड के तौर पर अभी मुझे एक भी तालिब इल्म ऐसे नहीं मिला कि मैं सोचूं कि मेरे बाद वो इस चीज़ को कंटिन्यू करे। लेकिन आपको लगता है कि आपकी ट्रेनिंग से वो ऐसा कोई हो जाएगा? 21 में से कोई एक स्टूडेंट तो होगा ऐसा। ताइफ वालों ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म किया तो आपने दुआ के लिए हाथ उठा दिया। साहबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह इतना जुल्म किया, आपने दुआ के लिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे रहमतुल आलमीन बनकर आप नहीं जानते, हो सकता है इनकी नस्ल में कोई कलमा पड़े, तो कोशिश जारी है मेरी भी, हो सकता है कोई ऐसा मुझे मिल जाए जो मेरे बाद इस चीज़ को कंटिन्यू करे। मदरसा बनाने का ख्वाब इसलिए है, कोई नहीं भी होगा तो वो एक पहचान होगी ख्वाजा सराओं की, चाहे वो एक वक्त में आएंगे ज़रूर। जैसे मैं प्रॉपरली आ गई हूँ, वो प्रॉपरली चाहे आए भी ना,
لیکن ایک سجدہ جو ہے اس کا وہ سجدہ ہمارے قبروں کو جنت کا باغ بنائے گا, ہمیں ٹھنڈا کرے گا. باقی آپ کا سوال اچھا ہے, کوشش کر رہی ہوں, آپ بھی دعا کیجیے گا. میں بھی رب سے روز دعائیں مانگتی ہوں. میرے نبی نے بھی تو عمر مانگا تھا, میں عمر تو نہیں مانگ سکتی, گنہ گار ہوں, میں بھی مانگ رہی ہوں. ہماری تمام تر نیک دعائیں اور نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں, اور ہم لسنرز کے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر کوئی بھی ان کے لیے کسی بھی قسم کا فائنینشیل ایڈ اگر کوئی پرووائڈ کرنا چاہے, ان کی ہیلپ آؤٹ کرنا چاہے تو ضرور کریں. ہم ماشاءاللہ تمام تر اسٹوڈنٹس ہیں, جتنا میکسیمم کر سکتے تھے ہم نے بھی کیا ہے. سیدہ رمین ریاض کی یہ بہت بڑی کاوش ہے اور ان کی ٹیم کی کہ یہ فیصل آباد سے ہم لوگ ٹریول کر کے یہاں پہ آئے ہیں, ان کو ملے ہیں, اور کافی کچھ ابھی ایکٹیویٹیز اور بھی ہیں, وہ بھی آپ کو گاہے بگاہے دکھاتے ہیں. تو میرا یہ پیغام ہے آپ سب کے لیے کہ فیمیل بیٹھی ہیں, ٹرانسجینڈر بیٹھا ہے, میل بیٹھا ہے, 3 ٹائپس ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ ڈفرینس نہ کریں, ڈفرینشیٹ نہ کریں, رسپیکٹ ایوری ون. ہر ایک کو سب سے پہلی جو آپ کی پریورٹی ہونی چاہیے وہ انسانیت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ میل نہ دیکھیں, فیمیل نہ دیکھیں, ٹرانسجینڈر نہ دیکھیں, سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یار ہے تو انسان نا, اس کو محبت کی ضرورت ہے یا نہیں, اس کی فیلنگز ہیں یا نہیں. آپ خود امیجن کریں کہ آپ کو اگر کوئی ایک چھوٹی سی بات اس دور کے اندر کوئی کر دیتا ہے, آپ ہرٹ ہوتے ہیں, اور ان کو ڈیلی کی کتنی مشکلات جو ہیں وہ فیس کرنا پڑتی ہیں, اور جب یہ رات کو سوتے ہیں تو کیا یہ سکون سے سوتے ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں پھر بھی ہم سے یہ کئی درجے سکون میں ہوتے ہوں گے. کیوں صرف یہ گریٹیٹیوڈ کی وجہ سے, یہ شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا. چاہے یہ جو بھی سوسائٹی کے اندر مانگتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں, لیکن رات کو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ضرور کرتے ہوں گے. ہم لوگ نہ شکرے ہو چکے ہیں, ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے. تو کائنڈلی آپ لوگ اس چیز کے اوپر غور کریں کہ جتنا میکسیمم آپ ان لوگوں کو رسپیکٹ دے سکتے ہیں وہ رسپیکٹ دیں, ایکول رائٹس دیں, اور میکسیمم جو ہے وہ ان کی ہیلپ آؤٹ بھی کریں, ان کے نیک کام کے اندر حصہ بنے ان کا. تو میم آپ کوئی آخری پیغام اگر دینا چاہیں یوتھ کے لیے یا کسی بھی قسم کے جو لوگ ہیں ہمارے بزنس ہیں. بس ایک ہی پیغام ہے میرا کہ دیکھیے جیسے رمین بیٹی ہے, انہوں نے فنڈ ریزنگ کے لیے بھی لوگوں سے اپلائی کی, ہمیں بٹھایا, لائف نہیں ہوا تو کچھ کوئی بات نہیں. ان کی بہت نیک کاوش تھی, میں تب سے ان کو دل سے دعا دیتی ہوں, ہر ایک کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہر ایک کو ایسے بیٹی دے. آپ لوگ کوشش کریں, آپ اپنے چینلوں سے, آپ کہیں سے ایسی کوشش کریں کہ ہمیں آپ بٹھائیں جیسے انہوں نے بٹھایا. نہ ہونا بڑی بات نہیں, کسی کو بٹھانا, کسی کو سامنے لے کر آنا یہ بڑی بات ہے. تو یہ بہت بڑی نیک کاوش ہے ان کی, آج ہی آئیں گے اتنی دور سے ہمارے لیے. میں آج ان کے لیے ضرور 2 نوافل پڑھوں گی ان سب بچیوں کے لیے, اور ایک لمبا سجدہ کروں گی ان بچیوں کے لیے کہ آپ دیکھیں کہ میں کتنی خوش ہوں ان لوگوں سے. آپ بھی ایسا پیار مانگتے کہ میں آپ لوگوں سے خوش ہوں. میم آپ اپنا کانٹیکٹ نمبر شیئر کرنا پسند کریں گے تاکہ لوگ اگر آپ کو کانٹیکٹ کرنا چاہیں ڈائریکٹ؟ جی میرا نمبر ہے 0340 217927. ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیجیے. 0340 217927. تھینک یو سو مچ. ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گی اینڈ پہ کہ ڈونیشنس کی جیسے ہم نے بات کی تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں ڈفرینٹ لوگوں کے لیے کلیکٹ کرتی ہوں, کبھی کسی کی فیس, کبھی کسی کی شادی کے لیے, تو ہمیشہ وہ بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے پھر بھی پوری ہو جاتی ہے. 23,000 تھا, 50,000 تھا, ریسنٹلی بھی پورا کیا, پورا ہو گیا. جب میں نے ان کو بلایا تو وہ صرف, حالانکہ میں نے اتنے زیادہ گیسٹ اسپیکر بلائے, میں نے بہت کوشش کی کہ ڈفرینٹ سوسائٹیز کے پریزیڈنٹس کو بلاؤں, ڈفرینٹ لوگوں کو بلاؤں, لیکن میرے پاس کتنے پیسے ہوئے 5 یا 6,000, جس میں سے وہ بھی میں ان ڈونر کا بھی تھینک یو کرنا چاہوں گی جنہوں نے آج کے لیے بھی سارا کچھ ڈونیشنز دی. تو وہ تب بھی انہوں نے 4,000 تو انہوں نے دے دیا تھا, مطلب, اور کسی نے دیا, کسی نے 200, کسی نے 100, کسی نے 500. حالانکہ مجھے لگ رہا تھا کہ جتنے ایزیلی میں کلیکٹ کر لیتی ہوں تو یہ تو لاکھوں میں ایزیلی پہنچ جائے گا. تو اگر آپ کسی اور کو بھی جیسے ہم دیکھتے ہیں تو اسی طرح ہم ان کو بھی دے سکتے ہیں. تو میں یہ چاہوں گی کہ اگر ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں, جتنے ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اگر ہم اس کو اپنا مشن بنا لیں کہ ہم نے ساتھ مل کے, ہمارے پاس موٹیویشن ہے, ان کے پاس راستہ ہے, ہم نے صرف کیا کرنا ہے, ایک کلیکشن کرنی ہے, ایک اماؤنٹ کلیکٹ کرنی ہے جس سے وہ ایک ادارہ بنا سکیں.
اگر ہم سارے آج سے کوشش کریں کہ ہم اپنے ارد گرد سے اپنی پاکٹ منی سے جتنا کچھ خرچ لیتے ہیں، ہم ایک ٹائم میں بیٹھے بیٹھے میرا خیال ہے کوئی باہر کھانا کھانے جائیں تو 3-4 ہزار کو تو ایزیلی کھا لیتے ہیں. تو اگر اس میں سے ہم اپنا روز ڈیلی تھوڑا تھوڑا حصہ رکھنا شروع کریں تو ہم ایک بہت اچھی کوشش کر سکتے ہیں، ایک اچھا ادارہ جو ہے پاکستان میں ہم قائم کر سکتے ہیں.